Okay, good morning, everyone. Good morning and welcome. I request everyone to please turn on your videos. I think the students are still coming yet to join in. But meanwhile, everybody else who is on the call, please do turn on your videos. Today is the day 15 of our journey. So we will start at 8:20. So in the next 2 minutes, we will start with today's chapter. And we'll also wait for the students to join in. I think they are yet to log in. Okay, good. आप में से तब तक everybody else on the call, आपने अगर कल का assignment किया, have a magical day. How was it for you? And you want to share? आप unmute कर सकते हैं, आप share कर सकते हैं. Would love to hear how you did the assignment. मेरी आवाज I request videos on कर लो, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ. So Lakwinder ji, Shreya ji, Mohita ji, Suman ji, Deepak ji, Rahul ji, just turn on your videos, please. Yes, so Shweta ji, would you like to share? Did you do yesterday's assignment? Yeah, it was really good when I did the assignment. I went through the day, had a couple of appointments to go for. It went amazing. And the end of the day, I got a gift from my friends for my 40th birthday a month before. Unexpectedly, I went to meet them and they gifted me something. That was the good news which came to me. And the appointment with a designer went amazing. And on the whole, the day was really fantastic. Wonderful. Very, very nice. Good. Thank you for practicing. मैं भी शेयर करना चाहूंगी कल भी जो मेरा दिन था वो भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बीता बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं सुबह उठी तो बहुत नॉर्मल सा डे था एंड देन आफ्टर द चैप्टर आई सेड ओके आज मुझे ये काम करना है ये काम करना है ये काम करने हैं एंड जैसे कल के चैप्टर ने कहा था कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक फील गुड स्पेस में रहे दैट you need to feel happy in order for this chapter to work. So I made sure whatever I had to do, अपने कोई songs लगाओ, dance करो, जो करना है करो, but to be in a feel good place. And out of nowhere, so many happy things started happening in my life. खुद ब खुद ऐसे हंसने हंसाने वाले circumstances आने लग गए. कुछ लोगों से कुछ मुझे बात करनी थी, वो बातें खुद ब खुद उन्हों के end से ही आ गई. तो overall it went like a very, very magical day to say. So हाँ जैसे कहते हैं ना कि आप इमेजिन कीजिए दिन की शुरुआत में ही कि आप रात में कह रहे हैं कि अरे वाह कितना ब्यूटीफुल डे रहा. So कुछ वैसा सा ही रहा. Okay, I don't think the students have joined in. I think there's some, I don't know if they. Anyway, who else would like to share? आप में से और किसने कल का assignment किया? And you want to share how it was for you? Yes, just unmute yourself and share. आपने कैसे किया कल का assignment? Rahul ji, Shreya ji. Yeah, Annie, hi, good morning. Good morning. I did my assignment and actually my day went really smoothly. You know, like whatever I had to finish, I could do it like very easily, you know, without any like, मतलब कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता है. So I had few things pending, you know, lined up for me, and I was able to finish everything. Wonderful. Good. Yeah, thank you. Good. Thank you so much. Okay, allow me a minute. Let me just call the trustee because I think there is some, I don't know if the students are joining or what it is. Okay, so just allow me a minute. I'll just connect with them and we'll resume.
Hanji, okay, so they are, I think, coordinating with the school. I don't know. They're going to update me. तब तक और कोई share करे what's happening in your life. इसी बहाने हमें आपसे बात करने का भी मौका मिला है. Otherwise, students के साथ ही the whole time is there. हाँ जी, और बताएं आप लोग कैसे okay, Pragati ma'am is joined it. Yes. I'm from presidency, ma'am. Here is some network issue is there. That's why nobody is able to connect. So we'll take some time. Let us know what we. Acha, okay. Thank you for updating me. I just called Garima ma'am because I didn't know. So that's why. But I'm glad that you updated me. Thank you. Okay. Yes. So meanwhile, who else will like to share? आपने कैसे करी अपनी assignments? What's happening in your life? Videos बंद करके बैठे हो? अरे तो फिर क्लास में क्यों आए हो? अगर कुछ और काम कर रहे हो तो उसको कर लो आराम से. रश्मि जी, would you like to share? आप अभी तक how are you doing the assignments? How is it going for you? Unmute कर लीजिएगा आपकी आवाज. हाँ जी. Good morning. Annie ma'am, I am doing my assignment daily, and to-do list I make every day. Like I make my list every day. Every day I make my to-do list, and everything happens according to what I have written. And I do gratitude for everything, and you and your family has taught me how to be grateful for everything I have. Wonderful. Thank you. Thank you so much. बहुत अच्छे. Thank you for sharing. Wonderful. Yes. Who else will like to share till the time, students? Pragati ma'am, would you like to share? How's it going for you, the journey? Ma'am, actually, I'm not able to do the writing part, but in my mind, every day I'm doing all the assignments given by you, and I really experience some magic is there. Yesterday, as you told, I received unexpected money also. Wow, that's wonderful. ये तो बहुत कमाल की बात है. Yes, it was not unexpected, but I received it anyhow. Wonderful, wonderful, wonderful. I'm glad. देखो आप अपने अभी देखो अभी तो आपने लिखना start भी नहीं किया. उसी से आप you're experiencing such wonderful breakthroughs. Once you start to do it completely, then पता नहीं what will open up. ठीक है, but good. I'm glad that you're experiencing this in your life. Wonderful. Yes. Okay. Someone's asking. Ashmi ma'am ka session. This is Rahul. Yes, Rahul ji. Yeah. So really wonderful experience. So this is my 12th or 13th journey. I think 8th and 9th with you guys. So yeah, really happy. And again, magnificent day. I think past 1.5 years, I think each and every day is doing magnificent. That's for sure. And I've achieved a lot of things in my professional as well as personal life. In office also, back-to-back promotion. In my personal life, yes, my hobby, movie making. My recent movie, Scrap, won 5 international awards. I think lot of things are happening magically. So again, like I'm thinking about how I'm just writing it down, and then it's happening day by day. And again, I'm putting the same thing in my daughter also. She's also again, yeah, she's just 11 years old in 6th standard. But again, she also knows. I think a lot of things happening in magical way. So we are not asking about how. We just like write it what we want. That's it. So write it what, and do not think how that will happen. So it's really helping me a lot. And yes, I'll definitely continue this journey because like back to back. So this is I think our back to back 4th session in December, I guess. So yes, and in sports also I will not maybe miss any session. So really thankful for everything. So yeah, that's a wonderful day. Yeah, thank you very much. Thank you, Rahul ji. Thank you so much for sharing. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने हर दिन को तो कर ही रहे हो, but you're also telling your daughter to do it. And I think it is so कि अगर parents करते हैं ना तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद they are also inquisitive to know more about it, practice more about it, and wonderful. Thank you so much for practicing. Thank you so much. So what we can do is, since it's 8:27, and I think there is a error that is there. So what we can do is we can repeat yesterday's chapter.
है ना, so that I think the students can also practice today also when they join in. I think 9 to 12th has logged in. I see them on the call. 9 to 12th is logged in. I think others are still joining in. Yeah, I think today we should repeat yesterday's chapter only, as that will be an okay. I think 5th class is also joined in. Very good. 5th year. Good. Yes. Okay. Very nice. Good morning. Good morning, students. Good morning. Hello. Areva. Very nice. Good to see you. Good to see you. Very, very good to see you. बहुत अच्छे. It's fine. कल मेरे साथ इंटरनेट में हुआ, आज आपके साथ हो गया. अब हमारा हिसाब बराबर हो गया. ठीक है. तो चलिए आज का चैप्टर. Let me see how. Okay, let's start with today's class. We'll start with today's chapter only. Has everybody logged in? Can somebody from the school tell me if everybody is logged in or if they're still logging in? We'll do it accordingly. If they're still logging in, then what we will do is we will repeat yesterday's chapter. If all have logged in, then we will start with today's chapter. Because looking at the time and everything. Okay, class 10th has joined in. Okay, ma'am has joined in. ठीक है, चलो. So we will start with today's chapter only. ठीक है, आज हमारा 15वां दिन है और आज का जो हमारा चैप्टर है उसके नाम है Heal Your Relationships. Magically heal your relationships. आज का चैप्टर इसके बारे में है. Heal your relationships का मतलब क्या होता है? कभी कभार कुछ ऐसे relationships होते हैं हमारी लाइफ में जो कि जिसमें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, जिसके अंदर हो सकता है there are some misunderstandings and हो सकता है there are some पहले बहुत अच्छा था अब नहीं है ना, या कभी भी अच्छा नहीं था. तो आज का चैप्टर आपको सिखाएगा how to heal your relationships. चलो स्टार्ट करते हैं. Everybody ready? अपनी सीट पे एकदम नॉर्मल बढ़िया तरीके से बैठे, all comfortable? Okay, let's begin. Day 15, magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. अभी ये आपको पहले बता रहा है आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं जिसके साथ आपकी बनती नहीं है ना, यू डोंट लाइक देम, या हो सकता है आपको उनको देख के गुस्सा आता है, या मे बी आप लोगों की कम्युनिकेशन ऐसी अच्छी नहीं है, या हो सकता है वो आपको डांटते रहते हैं तो आपको उनके साथ यू डोंट लाइक देम वेरी मच, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से आप अपसेट हुए या आपका दिल टूट गया, या हो सकता है आप किसी इंसान को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, तुमने अपना काम टाइम पे नहीं किया, उस वजह से देखो मेरी लाइफ में कितना लॉस आ गया, अरे देखो मैंने इसकी वजह से अपना करियर छोड़ दिया, देखो आज की डेट में मेरे इसके अंदर मैं कितना पीछे रह गई क्योंकि मैंने इनकी वजह से अपने करियर को चूज नहीं किया. यू ब्लेम, है ना, किसी भी इंसान के थ्रू. आज का चैप्टर आपको सिखाएगा. देखो आज आप 15वें दिन में आ गए हो, दैट मीन्स आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं एंड आज आप 3rd वीक में एंटर करने जा रहे हो, राइट. यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द 3rd वीक ऑफ दिस होल मैजिकल जर्नी. तो कहते हैं ना अब आप सीनियर लेवल पे आए जा रहे हो, आपकी प्रैक्टिसेस भी जो है वो अब और ज्यादा एडवांस और ज्यादा सीनियर लेवल पे जाएंगी. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि आप कैसे इस ग्रैटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू हील दैट डिफिकल्ट रिलेशनशिप. हो सकता है कोई आपके बहुत समय पहले बेस्ट फ्रेंड थे
जिसने आपके कहते हैं ना पीठ के पीछे कुछ गलत बोल दिया, जिस वजह से आपका ट्रस्ट टूट गया कि यार दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, उसने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया। या हो सकता है आपने किसी को बहुत ट्रस्ट करके अपना कोई सीक्रेट बताया, मगर उसने आपका सीक्रेट सबको बता दिया, तो यू वर लेफ्ट हार्ट ब्रोकन। या हो सकता है आपने किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में गए, है ना, कोई बिजनेस शुरू किया, उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको चीट कर दिया, जिस वजह से आपने लॉसेस सफर करे, आपने फाइनेंशियल लॉसेस, दिल से भी हो सकता है आपको चोट पहुंची है ना। मतलब ऐसे लोग जिनको डिफिकल्ट कहते हैं, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके साथ पहले आप बहुत अच्छे रिश्तों में थे, मगर आज की डेट में आप उनसे बात भी नहीं करते हो, है ना, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। आज का चैप्टर उन रिश्तों के बारे में है ना, जैसे होता नहीं है रिश्तों में दरार आ गई है, या हो सकता है वो रिश्ता आपकी लाइफ में अब है ही नहीं, चला गया। हो सकता है आपके कोई एक्स पार्टनर थे, है ना, इफ यू वर अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड यू हैड टू गो सेपरेट वेज, तो आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको सिर्फ गलत ही याद आता है कि यार ये तो खराब था, इन्होंने कैसे गलत किया, इन्होंने ऐसे किया। अरे अरे रुक जाओ, लेट मी या सो टुडेज चैप्टर इज अबाउट दैट। ठीक है, आज हम सीखने की कोशिश करेंगे किस किस की लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसे वंस अपॉन अ टाइम था। जस्ट रेज योर हैंड। हो सकता है आप अपने स्टाफ को ब्लेम कर रहे हो, अरे तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, देखो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, अरे यू आर नॉट डूइंग दिस, यू नॉट डूइंग दैट, है ना, यू ब्लेमिंग, और यू आर रिजेंटफुल, यार काश मैं उसके साथ चली जाती, काश मैं उसके साथ ऐसे कर लेती तो मेरी लाइफ ऐसी होती। आप रिजेंट कर रहे हो, है ना, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली होती तो आज मैं भी उस सर्कल में घूम रही होती। रिजेंटमेंट हो सकती है। आज का चैप्टर आपको सिखाएगा, हो सकता है किसी की डेथ हो गई, है ना, एंड आपके बहुत लव्ड वन थे वो, एंड आप आज भी उनके बारे में सोचते हो तो आपको बहुत दुखता है, बहुत दर्द होती है, बहुत आपको अपसेट फील होता है व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कि वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, हाउ कुड ही लीव मी लाइक दैट, है ना, कुछ ऐसा फील होता है। आज का चैप्टर आपको उस दर्द से, उस नेगेटिविटी से, उस गुस्से से, या जो भी वो फीलिंग है नेगेटिविटी की जो उस आपके और उस रिश्ते के बीच में है, उसको कैसे हील करना है, आज का चैप्टर उसके बारे में है। तो अगर आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life आप में से gets. किस किस ने ये चीज अपनी लाइफ में करके देखी है? ठीक है, आपको किसी इंसान के बारे में कोई चीज नहीं पसंद, आप उस इंसान को बार बार टोकते हो, टोकते हो, टोकते हो, टोकते हो कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। हो सकता है कि वो इंसान बदले में आके आपको भी बोलने लग जाए कि आपने क्या क्या गलतियां हैं, आपका रिलेशनशिप बद से बदतर होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक मदर हैं, आपका बच्चा है, आपको अपने यार ये जो भी ड्राइंग कर रहे हैं मत करो प्लीज, आईफोन whoever it is, don't do it, okay? हाँ, so what was I saying? सी भुला भी दिया। हाँ, so see for example you are a mother, ठीक है, आपको अपने बच्चे के बारे में ये नहीं पसंद कि वो अपना कमरा साफ नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप अपने बच्चे को बोलते थे कमरा साफ कर, कमरा साफ कर, एकदम निकट्ठू इंसान, यू नॉट वर्किंग, यू सो लेजी, अरे ये कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, यू ब्लेमिंग, देखो तुम्हारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है, तुम कुछ काम नहीं करते हो, ब्लेमिंग 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 ब्लेमिंग, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। इवेंचुअली सच्ची सच्ची बताओ, जो बच्चे होते हैं, हो सकता है इतना सुनने सुनाने के बाद एक दिन,
2 दिन चलो कमरा साफ भी कर लिया, मगर क्या 100% बदल जाते? क्या आप कह सकते हो कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही लविंग, बहुत ही फुल ऑफ कम्युनिकेशन, फुल ऑफ हार्मनी होता है? मे बी नॉट। मे बी बच्चा 1 दिन 2 दिन करेगा, फिर उसके बाद बैक टू हाउ इट वाज, है ना? वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ब्लेम करने से चीजें बेटर हो जाती तो आज तो हम बहुत ही सुंदर दुनिया में जी रहे होते ना, हम तो फिर अभी स्वर्ग में जी रहे होते। अगर ब्लेम करने से या किसी के अंदर टोका टाकी करने से चीजें बेटर हो रही होती, मगर वी हैव ऑब्जर्व, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आपने अपनी लाइफ में खुद इसको अनुभव किया कि ब्लेम करने से, किसी को गलत टोका टाकी करने से, रिजेंट करने से चीजें कभी बेटर नहीं हुई है। हाँ, खराब जरूर हो सकती है। हो सकता है अगर वो बच्चा कभी बड़ा हो जाए तो वो आपको भी पलट के जवाब दे, मम्मी देखो आपने ऐसे नहीं किया, आपने कहा टाइम पे नहीं दिया, अरे मुझे यहाँ जाना। एंड देन वी वंडर कि बच्चा मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है ना? या फिर अगर आप स्टूडेंट है, आप दोनों भाई बहन है ना, आप अपने भाई के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, अरे तू मेरी हेल्प नहीं करता, तू कितना ये है, तू कितना वो है, अपना रूम साफ रखा कर, है ना? तो पलट के भाई क्या बोलेगा? अरे तू अपने आप को देखा है, तूने क्या कर लिया, तूने ऐसे क्या कर लिया? यस, नो? इफ यू कंप्लेन, इफ यू वांट टू चेंज थिंग्स अबाउट अदर्स, मोर और लेस वो भी फिर आपकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा ऐसा ही कर, यस, नो? किसने ऑब्जर्व किया है कंप्लेन करने से और कंप्लेन्स ही आती हैं ऐसी सिचुएशन में? आप झगड़ा करने बैठ जाओ, ओहो हो, झगड़ा करने बैठ जाओ, हो गया, यस? The worse the relationship gets and the worse your life gets. यार एक चीज तो समझ लो, है ना, कि ब्लेम करना, टोका टाकी करने से अगर रिजल्ट्स आ रहे होते तो आज की डेट में आ चुके होते, बट इट्स नॉट वर्किंग, राइट? इट्स नॉट एन एफिशिएंट वे टू वर्क। तो अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो फिर कैसे करना चाहिए काम उन लोगों के साथ? चलो जानते हैं। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to the anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. These are the words said by founder of Buddhism, Gautam Buddha. सो बहुत ही एक, है ना, हम में से बहुत सारे लोग कभी कभार सोचते हैं, अरे उस इंसान से मेरी नहीं बनती यार, दफा मेरी बुला से, मुझे नहीं, एक इंसान नहीं आएगा मेरी लाइफ में तो क्या फर्क पड़ता है, लेट इट बी, है ना? देयर आर सो मेनी वंडरफुल पीपल, फॉरगेट इट, आई विल फाइंड समबडी एल्स, है ना? बॉस है आपके, अपने स्टाफ के साथ नहीं बनती, व्हाट विल यू डू? यू विल फायर देम एंड से ये किसी काम का नहीं है, दफा जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। फ्रेंड में किसी के साथ झगड़ा हो गया, दफा जाओ, मैं दूसरे किसी को ढूंढ लूंगा। मम्मी पापा में ये ऑप्शन नहीं होता है तो हम अपने कभी कभार कान बंद कर लेते हैं, है ना? तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपके अंदर किसी भी इंसान को लेके किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग है, एंगर इज वन ऑफ देम, है ना? एंगर कैन बी, तूने मेरे साथ ऐसे किया, अब तू देखियो मैं तेरे साथ क्या करूंगा, अच्छा बेटा मेरी तूने पब्लिकली बेइज्जती की, नाउ यू वेट एंड वॉच व्हाट आई विल डू विद यू, अच्छा यू बिट्रेड मी, नाउ यू वेट एंड वॉच बेटा व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ, है ना? या किसी भी तरह की भावना, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल। आप अपने एंगर को अपने अंदर दबा के रखते हो, वो विजिबली आंखों से नहीं दिखता है मगर आपके अंदर तो होता ही है ना। इज लाइक आपने एक गरम कोयला पकड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि मैंने वो गरम कोयला पकड़ा हुआ है तो उससे वो दूसरा इंसान जल जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे, है ना? आपने अगर एंगर पकड़ा हुआ है, इज लाइक आप पॉइजन पी रहे हो, आप पॉइजन पी रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे पॉइजन पीने से वो इंसान मर जाएगा। ऐसे काम करता है क्या दुनिया? नो ना, जो पॉइजन पिएगा उसी को उसका deadly effects face करने पड़ेंगे ना। So today's chapter is about you, and today's chapter will tell us कि यार ये जो गरम कोयला, ये जो पॉइजन आप अपनी लाइफ में भर रखा है आपने, जिससे हो सकता है आपकी अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा, यू नो, मजा नहीं आ रखा है,
उसको कैसे आप वंडरफुली मैग्निफिसेंट बना सकते हो? चलो पढ़ते हैं. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they would not be alive if it was not for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. As well as bringing peace and harmony to the relationship, through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect है ना, example. बहुत of सारे it. लोग अपने गम को मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं आपने देखा होगा, है ना. कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, कुछ लोग न जाने क्या क्या चीजें अपनाते हैं, न जाने क्या क्या चीजें करते हैं. कुछ लोग अपने आप को इतना ज्यादा वर्क में डाल देते हैं कि अरे बाबा मत करो, whatever whoever this is person, just don't do it. हाँ, है ना. a lot of people they say कि अरे कोई नहीं, इसको भूल जाने के लिए मैं अपने आप को काम में झोंक दूंगा, है ना, and I'll give it to that, or I'll just not try to think about it, या इसको मैं मिट्टी में डाल दूंगा, forget about it. But let's be honest, है ना, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी इनकम्प्लीट है जिसके बारे में आप सोचते हो तो आपको अभी भी डिस्कम्फर्ट फील होता है. हो सकता है आज आप 9th क्लास में हो, मगर आपका 2nd क्लास में कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसने उस टाइम पे आपके साथ ऐसी दोस्ती तोड़ दी आउट ऑफ नोवेयर, एंड आप आज भी उस 2nd क्लास के दोस्त के बारे में सोचते हो ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता कि यार आज हो सकता है आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर हाँ उस दोस्त के बारे में आप अभी भी सोचते हो तो आपको लगता है उसको मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, आई डिडंट लाइक इट, आई फेल्ट सो अलोन. तो आज का चैप्टर आप उसके साथ कर सकते हो, है ना. आपकी लाइफ में हो सकता है आपके कोई टीचर थे, कोई सर थे जिन्होंने आपको कुछ समय तक पढ़ाया, उसके बाद वो चले गए, and you really miss them, है ना. You want to spend time with them, you think about what the wonderful teachings they taught you, and you don't know how to come out of that negativity. मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं अपना बता रही हूँ, है ना. तो आज का चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो. हो सकता है आपने किसी पे बहुत भरोसा किया, है ना, और उस इंसान ने वैसा काम नहीं किया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया, तो उससे हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई हो, है ना. आपने हो सकता है कुछ लॉस भी सफर किया. तो आज का चैप्टर आपको उसके सिखाएगा. इमोशनल पेन भी हो सकती है. हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार है, नॉर्मली ये बड़े लोगों के साथ होता है, पता नहीं क्यों, है ना, जिनके साथ उन्होंने आपसे कुछ बदतमीजी से बात कर दी या गुस्से से बात कर दी, तो आपने बोला आज के बाद मुझसे जिंदगी में बात मत करना, मुझे आपसे जिंदगी में दोबारा बात नहीं करनी है ना. एंड पहले हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा था, बट अब you don't talk. It's probably been a good time that you haven't talked. So today's chapter will be about letting go of that negativity in your life. है ना, किसी भी तरीके की हो सकती है, छोटी, बड़ी, recent, बहुत पुरानी, doesn't matter. Doesn't matter. Today's chapter is about you and you letting go of that poison that this negativity is bringing in your life. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but did not have the time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude,
Opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. है ना, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके लव्ड वंस, आपके कोई बहुत क्लोज है, वो पास अवे कर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी गेट अपसेट, है ना, वी क्राई, वी से अरे अब मेरी लाइफ में क्या होगा. इफ somebody very very close, है ना, we get very emotional about it, we get very upset about it, है ना. जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि रोंडा बर्न की मदर और फादर जो रिलेशनशिप था बहुत अच्छे थे, है ना, सब कुछ बहुत अच्छा था. अब देखो किसी इंसान के साथ आपने सालों बिताए हैं, ठीक है, ये अभी अपने मम्मी पापा का शेयर कर रही है कि जब इनके फादर की डेथ हुई तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी को बहुत अपसेटिंग हुआ होगा, है ना. अब सोचो जिस इंसान, तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है जैसा फील कर रहे हो, मगर अब उसी के साथ ही साथ अब आप ग्रैटिट्यूड को कैसे कर सकते, है ना. तो उन्होंने क्या किया, जो जो अच्छे अच्छे टाइम्स उन्होंने उनके साथ बिताए थे उसके लिए थैंक यू करना स्टार्ट किया, है ना. कभी घूमने ले गए, कभी हो सकता है कुछ शॉपिंग कर ली, कभी कोई स्पोर्ट्स इकट्ठे खेले थे, कभी इकट्ठे बैठ के हंसे थे, कभी कोई मूवी इकट्ठे देखी थी, है ना. ऐसे कोई ब्यूटीफुल टाइम्स, कभी कुछ सिखाया था, कभी कोई ब्यूटीफुल कुछ खाने को बनाया था, कभी कुछ बहुत ही क्यूट सा इंसिडेंट हुआ होगा. ये मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में देखो, है ना. हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आपके साथ थे, मगर अब आज की डेट में आपकी उनके साथ बात भी नहीं होती. कुछ कभी कभार तो ऐसी भी हो जाता है कि आप एक दूसरे को क्रॉस करते हो, आप हाय हेलो भी नहीं बोलते, है ना, इतना वो हो जाता है. मगर आज का चैप्टर आपको कह रहा है चलो ठीक है ना, बट जस्ट थिंक अबाउट कि अच्छा उस फ्रेंडशिप के अंदर भी क्या क्या था, है ना, क्या ब्यूटीफुल चीजें थी जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, है ना. तो स्टार्ट by writing all your thank yous for them, you know, for all the wonderful things you did with them, you learned from them, you experienced with them. फिर उसके बाद जब आप उसका कोटा भर लो, जितना ज्यादा लिखना है लिख लो, उस कोटे को भर लो. फिर उसके बाद आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, है ना, फ्यूचर के लिए अंदर क्या क्या, जैसे उन्होंने बोला कि यार इतनी सारी चीजें थी जो मैं करना चाहती थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो अब मैंने उसके लिए भी थैंक यू देना शुरू किया कि चलो अब मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये सीख सकती हूँ, मैं ये हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ, इसके लिए टाइम है. तो एक तरीके से क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरे पास्ट को तो भरा ही भरा, मगर अब फ्यूचर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी. आप अपनी लाइफ में देखो, है ना, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपके दादा दादी थे, है ना, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम दिया. हो सकता है आज आप उनके साथ उतने टच में नहीं है, हो सकता है वो अभी भी जीवित हो, मगर आपका टच उनके साथ बिल्कुल खत्म हो गया. तो आप ये प्रैक्टिस उनके साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. For today's magical power, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It does not matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think about the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or did not do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. है ना, तो ये आज की चैप्टर इसके बारे में नहीं है कि कौन गलत था, कौन सही था, किसने सही किया, किसको कैसे नहीं करना चाहिए था. It's not about that. And it doesn't even matter कि वो इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है. हो सकता है आप, अगर आप अपनी मम्मी को चूज करते हैं, हो सकता है उनके साथ आपका नया नया झगड़ा हुआ हो, है ना, जिसे आप हील करना चाहते हैं. तो इट डजंट मैटर कि कौन सही था उस जगह पे, कौन गलत था. इट्स नॉट अबाउट दैट. हाँ, अगर आप अपने
अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हो, नॉट फॉर देम कि मैंने इसको हील किया तो फिर मतलब मैं गलत था, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। आप इसको करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आप सोचोगे यार मैं अभी 9th क्लास में बैठा हूँ, वो 2nd क्लास का फ्रेंड जिसने मेरे साथ उस समय बदतमीजी से बात की थी, उसके साथ अपना रिलेशनशिप हील करके मेरी आज 9th की क्लास में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। वो तो मेरी लाइफ में कब का जा चुका है। मगर कमाल की बात है, आप इसको करके देखिएगा, आप देखेंगे उसके बेनिफिट्स आपके प्रेजेंट फ्रेंडशिप्स के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर बहुत ही ज्यादा वंडरफुली आपको इसके कहते हैं ना रिपल इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स दिखेंगे। एंड आपको आज की असाइनमेंट करने के लिए दूसरे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। You do not need the other person in order to do today's assignment, in order to heal this relationship. आपको इनसे बात तक करने की जरूरत नहीं है। कभी सोच सकते थे आप कि एक रिलेशनशिप हील हो रहा है जिसमें दूसरे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, आप काफी हो, है ना। कितना कितना मेरे को तो ये लगता है यार, ये तो कितना अमेजिंग है कि मैं अपनी लाइफ में चूज कर सकती हूँ मुझे किस इंसान के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए, रादर मैं अपनी लाइफ को कितना ज्यादा भरना चाहती हूँ वंडरफुल, उस पॉइजन को निकाल दो, एक्सक्रीट कर दो, नहीं चाहिए मुझे, मुझे लाइट रहना पसंद है। आई लाइक टू ट्रैवल लाइट। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ। There is a gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. For example, dash name, I'm grateful for what? Number 1. Paul, I'm grateful for our time together while our marriage did end. I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number 2, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you did not have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. तो ये तो अभी अपना शेयर कर रही है। जैसे ऑब्वियसली अगर कभी कभार बड़े होके कोई स्प्लिट हो जाते हैं तो दैट मीन्स कुछ गलत रहा होगा ना। आप अपनी लाइफ में देखो कि अच्छा हो सकता है आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी बहुत लंबे समय से, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी आप लोगों की, मगर आज की डेट में हो सकता है कि आपके पास या तो एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, या हो सकता है आपकी दोस्ती भी खत्म हो गई है, या हो सकता है कि आजकल उससे ज्यादा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े या ब्लेम ज्यादा आते हैं किसी भी तरीके से, है ना। तो आज की असाइनमेंट आपको क्या कह रही है कि उस रिलेशनशिप के अंदर, है ना, इनिशियली याद करो जब टाइम अच्छा था, उनमें से किसी पलों के लिए आप अपना थैंक यू ढूंढना स्टार्ट करो, या फिर आपको उस इंसान के बारे में क्या चीज पसंद है एज एन इंडिविजुअल उसको ढूंढ के थैंक यू करना स्टार्ट करो। और आज की असाइनमेंट करना, देखो अब आप ना 3rd वीक में आ गए हो, आप लोग अब सीनियर क्लास में आ गए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बैठ के मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा
ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। आज की असाइनमेंट के लिए आपको थोड़ा सा आराम से बैठ के अपने ये जो भगवान ने आपको एक बुद्धि दी है इसको आपको थोड़ा चर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ अब आपकी बात ही नहीं होती, लेट्स से वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में है ना, और आप आज की डेट में सोचते हो यार कितनी अच्छी दोस्ती थी, काश हम आज भी फ्रेंड्स होते, करके आपको थोड़ा सा अपसेटिंग लगता है। तो आप उसके अंदर कैसे ढूंढ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी उस इंसान का नाम है, लाइक जो भी नाम है, ठीक है, लाइक डैश, I am so grateful that you were a wonderful friend for me and you were always, मैं अपना शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक कि I am so grateful कि आप you were a wonderful friend to me and always there when I needed you, या Shreya, I'm so grateful to you for being so bubbly and full of life and so wonderful. Shreya, I'm so grateful that you taught me English songs. Because of you, I started listening to English songs. Shreya, I'm so grateful for you for telling me, for not giving up and for making sure that we stay best friends for the longest time. Shreya, I'm so grateful to you for, Dhundo, for inviting me for your birthday and for making sure you make me feel special as your best friend. Shreya, I'm so grateful. तो इस तरीके से ढूंढो, ठीक है, find things to be grateful for. Find things. मैं, आप अपनी लाइफ में देखो हर इंसान की लाइफ में ना अलग अलग चीजें होती हैं. Shreya, I'm so grateful that you are so beautiful and I feel so proud that you were my best friend. है ना, इस तरीके से ढूंढो चीजें. Shreya, I'm so grateful that you have a great sense of humor and हम ऐसे इकट्ठे जोर से बैठ के साथ में हंस सकते हैं, है ना. Find things to be grateful for. 10 चीजों की आपने लिस्ट ढूंढी कि आपने उस इंसान के साथ या तो कोई अच्छा पल जब बिताया उसके लिए थैंक यू कर दो, उस इंसान ने आपके लिए कुछ किया, या आपको उसके बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक पसंद है, कोई भी 10 चीजें. doesn't have to be a big thing, है ना, कोई छोटी सी चीज भी हो सकता है. आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया, जैसे मम्मी के साथ झगड़ा हो गया है ना, एंड आपको उस रिलेशनशिप में अभी हीलिंग की जरूरत है, या आपको लगता है यार मम्मी मेरे को छोटी छोटी बातों पे ना बहुत डांटती रहती है यार, तो उसके अंदर आज की असाइनमेंट कैसे करनी है जरा देखो. चलो पहले इस पल को याद करो कि चलो जब मम्मी नहीं डांटती थी, है ना, या जब मम्मी आपके साथ प्यार से बैठती थी, तो जरा सोचो कि मम्मा आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप हमारे साथ लॉकडाउन पीरियड में रात रात बैठ के मूवीज देखते थे और कितना हंसते थे, एंजॉय करते थे. मम्मा आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में इकट्ठे लेके जाते हो और हम बैठ के खाना खाते हैं. मम्मा आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरे लिए, मैं एक अच्छी इंसान बनूं उसके लिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इतनी मेहनत करते हो, आपका बहुत थैंक यू. मम्मा आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में भेजा. एंड ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो. कब तक कितनी लंबी, 10 तो मिनिमम बनानी है उस इंसान के लिए, है ना. कब तक, जब तक आपको उस इंसान के लिए हल्का महसूस ना हो. उस जो भी आपको उस रिलेशनशिप में नेगेटिव फीलिंग है, आपको उसको लेके हल्का ना महसूस हो, ठीक है, तब तक आपको ये असाइनमेंट को करना है. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Because it is your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a अपनी past, जो असाइनमेंट है आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हो, मतलब जो लोग अभी आपकी लाइफ में है उनके लिए भी कर सकते हो, और उन लोगों के लिए भी कर सकते हो जो अब आपकी लाइफ में नहीं है मतलब पास्ट में थे, ठीक है. एंड आप सोच सकते हो अरे मैं क्यों करूं, उसको भी तो करना चाहिए ग्रैटिट्यूड, मैं ही क्यों ग्रैटिट्यूड करता रहूं उसके लिए, दिमाग में आ सकता है ना. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो इंसान ग्रैटिट्यूड करेगा उसे ग्रैटिट्यूड के फायदे मिलेंगे, है ना. जो इंसान ग्रैटिट्यूड करता है उसी की लाइफ में
और अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे लोग वो सब चीजें ढूंढ के आते हैं. तो अगर आपको अपनी लाइफ में वो चाहिए तो असाइनमेंट कर लेना. ठीक है. हो सकता है आप अभी like since we have teachers and parents on the call, you are married, है ना, you have a spouse. कभी कभार झगड़ा हो जाता है ना, वो सुनते नहीं है, बात नहीं करते, ऐसे ऐसे करके कंप्लेंट्स आ जाती है ना, हेल्प नहीं करते करके कंप्लेंट्स आ जाती है. आपको दिख रहा है आपका रिलेशनशिप डाउनहिल जा रहा है उस एरिया में. आज के चैप्टर ने आपको सिखाया है कि उसको आप अगर हील करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है. ठीक है. कुछ भी क्वेश्चंस हो, इफ द टाइम अलाउज विल टेक एट द एंड. आगे बढ़ते हैं. Relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the कहीं भी relationship. जाओ, बॉस के साथ नहीं समझ में आ रहा, बॉस डांट रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बॉस के साथ रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, ये चैप्टर है. ठीक है. आपको अपना एम्प्लॉय नहीं पसंद, ये चैप्टर है. आपका जो वर्क टीम है, आपके हो सकता है स्टूडेंट्स इकट्ठे ग्रुप में काम करना है, आपको कोई बच्चा नहीं पसंद आ रहा, उसके साथ करना, उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग है आपकी, आज का चैप्टर है. कमाल की बात है, आप देखोगे आप जितना हील करोगे ना रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ के अंदर कुछ फिर कुछ आपको बदलाव फील होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज टुडेज चैप्टर. आज के बाद कहते हैं ना, किसी भी रिलेशनशिप पे आप देख रहे हो कि चिंगारी लग गई है ना, बहस छिड़ गई है, कुछ छोटा सा हुआ है, तो वो कहते हैं ना, चिंगारी की आग बदल जाए उससे पहले ही उसके अंदर पानी डाल दो. किस चीज से? थैंक यू का, ग्रैटिट्यूड का, जो हमारे को आज के चैप्टर में सिखाया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Magic practice number 15, magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ जी. सो ये हमारी आज की असाइनमेंट है. हम अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स, आई होप सब लोग सुबह उठते ही अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू राइटिंग, है ना. तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है एंड रात में सोने जाने से पहले मैजिक रॉक करना है. और आज के चैप्टर ने आपको बताया है, पहले आज कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप चूज कर लो जिसके अंदर अभी वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हो. पास्ट प्रेजेंट डजंट मैटर. ठीक है. एंड देन उसके अंदर आपने 10 चीजें जो अच्छी है वो ढूंढनी है. आपका ये कह देना उसमें कुछ अच्छा नहीं है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, इज नॉट हाउ यू डू द असाइनमेंट. आराम से बैठो, शांत सी जगह में बैठो एंड सोचो क्या ढूंढ सकता हूँ. कुछ ना कुछ तो हर इंसान में अच्छा होता है, पर ढूंढना पड़ेगा आपको. ठीक है. सो दिस वाज टुडेज चैप्टर. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अपफ्रंट आ जाओ. एंड यस, समवन फ्रॉम 9 to 12. 1 second. Now you will be able to unmute yourself. Unmute भी कर लीजिए. Good morning. Good morning. My name is Priyal and I'm from 9th standard, and I want to share that I have an allergy that every season my skin changes, and that is why it heals in 15 to 20 days, which is too much for me. And by doing that magic practice of Magic Health Day, I made that card and kept in my wardrobe. I paid gratitude to it every day, and in just 5 to 6 days my skin is cured and I'm well better than that. Wow, that is wonderful. Very, very nice. Can you tell me what all did you do to heal it, like with the card?
yeah, I made that card. I wrote that I'm thankful for what the health I have in my life. Whatever things good happen, I wrote in my blessings list, and I paid gratitude to it every day. Very good. Very, very nice. I'm so glad to hear. Thank you for sharing. Thank you. Thank. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I just want to ask you that I want a dog. So can I write in the dream list for it and I will get the dog? For sure. So many kids have got it. Okay, ma'am. So Thank many you, kids ma'am. have got it, yeah. For sure. Just do the assignment जो day 13 ने हमें बताई थी ना. Okay, ma'am. Do that. Thank you. Thank you, ma'am. But just be clear, right? Like what dog, what breed, all of that. You know, and imagine yourself, how will you play with it? How will your mom take care of it? What will you name it? Good, thank you. Yes, who else? Raise your hand. Yes, please come. And the girl who's raised her hand. Yes. Good morning, ma'am. I am Darsha Sumani from class 6. I will tell about my dreams. My first dream is I want to be an international sports player. My second dream is I want to be a dancer. And my third dream is I want to do different adventures. Okay. May I ask which sport do you want to play internationally? In everything. Every sport. अरे ऐसे थोड़ी ना होता है. स्पोर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं ना. क्रिकेट भी है, बास्केटबॉल भी है, फुटबॉल भी है, और बैडमिंटन भी है, और वॉलीबॉल भी है. तो आप कौन सा इंटरनेशनली खेलना चाहते हो? Cricket. क्रिकेट खेलना चाहते हो? हाँ, तो क्रिकेट मतलब प्रोफेशनली खेलना चाहते हो या इंटरनेशनली, मतलब मैं आपको लंदन में छोड़ा हूँ, वहां पे बच्चों के साथ खेल लोगे तो उसी में खुश हो जाओगे? Professional. So my suggestion to you, thank you firstly, thank you so much for sharing. Just a little feedback, है ना? जैसे for example, अगर आप अपने आप को कोई sport खेलते हुए देख रहे हो, जरा सोचो कौन सा sport खेलना है, क्यों खेलना है. इंटरनेशनल में भी तो देखो different levels होते हैं ना. कॉमनवेल्थ होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, ये लड़कियों का तो वो भी होता है, आई डोंट नो क्या कहते हैं, T20 टाइप्स चीजें है ना. So you want to be a part of the Indian cricket team of women, है ना, because this is your dream. You know, this is something that you really want, like really want वाली चीज. So just think if it is, है ना, and then इसके ऊपर और काम करो. Similarly, जो आपने डांसिंग में बोला, बहुत अच्छी बात है. डांसिंग में भी what do you think it means? You know, do you want to be a professional dancer? Do you want to open your academy? Do you want to work on the television? Do you want to, you know, dance is huge. Do you want to be a choreographer? Do you want to be, है ना? तो अच्छी बात है, चलो आपने थोड़ा बहुत तो लिखा, मगर work more upon it, है ना? और कैसे कर सकते हैं इसको refine? The more refined it will be, the more better it will be of, you know, coming true. And at the same time, अभी आप 6th क्लास में हो, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि ये तो आपके 12वीं के बाद आप करोगे. कोई अगर आपका इमीडिएट ड्रीम है, जो आपको इमीडिएटली भी चाहिए कि ये तो अभी चाहिए, उसको भी लिखो, उस पे भी काम करो. ठीक है? That will be my suggestion. Thank you. Thank you so much. Good morning, Nidhi. My name is Risha. Thank you. I will tell my dreams. Okay, she will be the last person sharing because time is up. Yes, please. Ma'am, my first dream is that I want to be a karate international player. My second dream is I want to be an army officer. And my third dream is to be a player of MMA. Good. Good. आप अपना विजन बोर्ड भी बनाओ और फिर मेरे को अपना विजन बोर्ड भी दिखाओ. ठीक है? कैसे बना? Good morning, ma'am. Yes. मैम अपन ये मतलब मेरी मदर के साथ मेरा इतना रिलेशनशिप अच्छा है, पर कभी कभार थोड़ी लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो अपन ये असाइनमेंट अपनी मदर के साथ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने आपको यस. एंड मैम, जो अपन 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं उन्हें हम रिपीट भी कर सकते हैं, जो जैसे ब्लेसिंग्स लिखी है स्टार्टिंग में और वो गलती से कुछ रिपीट कर दिया तो वो भी मतलब हो सकता है? कोशिश करो नहीं लिखने की. Try to find more and more. Repeat कर दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, मगर try to find more and more. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you.
मम्मी के साथ तो करो, ओहो मैं आपको बता नहीं सकती, सेम मम्मी बदल जाती है। मतलब जो मम्मी पहले एकदम डांट रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, वही मम्मी में बदलाव आ जाता है, आप हैरान रह जाओगे। बस इस असाइनमेंट को करते रहो करते रहो करते रहो तब तक जब तक यू डोंट फील बेटर। ठीक है, यू शुड फील बेटर अबाउट दैट सिचुएशन। जैसे आपको हल्का महसूस होना शुरू हो गया ना, बाहरी सिचुएशन खुद ब खुद बदल जाए। ठीक है, सो इट्स 9:13, आई थिंक वी से वील मीट यू ऑल टुमारो नाउ। आज का चैप्टर कीजिएगा, कल हम शेयरिंग्स लेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो, हैव अ वंडरफुल डे।